یہ مسلمان ایک امہ ہے، کسی انگلی میں درد ہوگا تو ہم کو پہنچنا لازمی ہے، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے بوسنیا ہو، چاہے وہ کہتے ہیں افغانستان ہو، اس لیے سارے جہاں کا درد ہمارے ذکر ہے، ہم تو جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس القاعدہ ہے جس کا ایک گلوبل ایجنڈا ہے، ایک آپ کے لوگ دن رات یہ بیان دے رہے ہیں، آپ کے لوگ بارڈر کراس کر کے جا رہے ہیں۔ اب ہندوستان جو کچھ کر رہے ہیں اپنی بارڈرز کے اندر تو کر رہا ہوگا، لیکن ادروائز وہ باہر نکل کے ایکسپورٹ نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خود جو ہے نا یہ چیزیں دنیا والوں کو خود بتائی ہیں، چاہے ہم نے کیا اتنا نہ ہو، لیکن ہم نے یہ بدنامی اپنے اوپر ضرور لے لی۔ تو دا فیکٹ از کہ یہاں پر یہ پرابلم موجود ہے اور اس کو بہت مضبوط طریقے سے اس کے ساتھ ٹیکل کرنا ضروری ہے، اور اس پہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم چونکہ ایک وکٹم ہیں ٹیررزم کے، اور یہ اٹ از ناٹ آل آف اوور میکنگ۔ کیوں میں کہتا ہوں یہ اٹ از ناٹ اوور میکنگ؟ ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، سوویت یونین وہاں پر چڑھ دوڑا، وہاں پہ 50 لاکھ آدمی ہتھیار لے کر نارکوٹکس لے کے پاکستان پہنچ گئے، پھر وہ بارڈر کراس کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ویسٹرن بارڈر کی سینٹیٹی ہماری ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ یہاں سے ان کی مدد کو چل پڑے اسلامی جہاد کے، جن کو استعمال کیا ویسٹ نے امریکہ نے۔ یہ سب باتیں تو ہیں، وہاں پھر آپس میں جنگ ہوئی، وہ ختم ہوئی، اب امریکہ آپ کہہ رہے ہیں تورا بورا کرنے پہنچ گیا، پھر لوگ یہاں پر آ گئے، پھر وہ کچھ کہتے ہیں۔ تو ایوری تھنگ از ناٹ آف اوور میکنگ۔ ہم ایسے ایک امپورٹنٹ خطے میں بیٹھے ہیں جہاں ایک بگ گیم کھیلا جا رہا ہے، ہم اس کے بھی وکٹم ہیں، لیکن پھر بھی فراست سے، بصیرت سے، حکمت سے، گہری سوچ سے یہ دیکھ کر کہ کس طریقے سے لوگ ایسے پرابلم سے نکلیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا، اپنے عوام کو بھی اس چیز سے ہٹانا ہوگا، اور جو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں ان کو بائی فورس ان کو ٹیکل بھی کرنا پڑے گا، اور دنیا سے ہمیں ان سے کوآپریٹ کر کے مدد بھی لینی پڑے گی۔ پاکستان تو کر رہے ہیں نا، کوآپریٹ تو پاکستان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، کبھی یہ نہیں کہا ہم کر رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں میں وہ سمجھتے ہیں پورے کا پورا نیٹو کا جتنا بھی سامان ہے آپ کا 70% وہ آپ کے ملک کی زمین سے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز کی جو بات کر دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں، تو وہ تو پھر ایسا ہے کہ وہ تو پھر بش نے جس اسٹیٹمنٹ کو لے کے بش گیا تھا وہاں پہ عراق میں، اور بعد میں انہوں نے خود مانا جی کہ اٹ واز اے فلاڈ انفارمیشن انٹیلیجنس۔ جی ہاں، تو وہ جو بات کہیں ہم ساری باتیں ان کی ماننا شروع کر دیں، تو یہ جو ان کے سارے تجزیے ہم ماننا شروع کر دیں۔ نہیں، وہ تو نہیں۔ جی اس پرابلم کو پہلے ہم تسلیم کریں کہ ہے پرابلم پاکستان میں، وہ تو سارے مانتے ہیں۔ نہیں، ہم تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، ڈینائل میں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف بھی آتے ہیں نظم صاحب، اور بیگ صاحب آپ کی طرف بھی۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے ڈیوڈ کیمرون، برطانیہ کے جو وزیر اعظم آج پاکستان آئے ہوئے تھے، اور جو پاکستانی قیادت کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، مذاکرات ہوئے ہیں، اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ آج برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پاکستان کا دورہ کیا، اور پاکستان کی قیادت کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے، اور ایک انہینس اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے ڈاکومنٹ کے اوپر بھی سائن کیے دونوں وزرائے اعظم نے۔ نجم صاحب، آپ بریک سے پہلے کچھ فرمانا چاہ رہے تھے، پلیز گو ایہڈ۔ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، ابھی آپ کی جو اہمیت ہے دنیا بھر میں، اور جب جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ڈٹو کاپی ہے امریکہ کی، اور جو برطانیہ والے یہاں آپ سے بات کرتے ہیں وہ ڈٹو کاپی ہے، ڈٹو کاپی کے علاوہ ان کی ایک خاص اپنی بھی دلچسپی ہے، ایک خاص تشویش ہے، اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس 10 لاکھ سے 11 لاکھ پاکستانی اوریجن کے لوگ رہ رہے ہیں، اور ان کا آنا جانا یہاں پہ بہت زیادہ ہے بنسبت امریکن 7 لاکھ یا 8 لاکھ پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان سے بہت زیادہ ہے ان کا آنا جانا، اور وہاں پہ ایک خاص چیز ڈیولپ بھی ہوئی ہے، کیونکہ مسجدوں میں وہاں پہ زیادہ انتہا پسندی کے سبق سکھائے جاتے ہیں، تو ان کو ایک خاص تشویش ہے۔ لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کی جو اہمیت ہے وہ افغانستان کی وجہ سے۔ افغانستان میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ میں ہوتا تو میں پرائم منسٹر سے کہتا کہ بھئی پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں سے ریفیوجی کیمپس ہٹا کے آپ افغانستان میں لے جائیے، اگر اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے یہاں سے سپورٹ دیجیے، پھر ہم پہ کوئٹہ شورا وغیرہ نہ لگائیے، یہ نہ کہیے کہ ان کیمپس میں ریسٹ اینڈ ریکریشن ہوتی ہے، یہ آپ سنبھالیے، اپنی طرف لے جائیے، وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی نہیں کہا ہوگا کہ ان کو لے کر جائیں آپ؟ ہم کیوں مانتے ہیں کہ UN HCR کہتی ہے کہ نہیں صاحب ان کو بڑھا دیجیے،
मुझे नहीं लगता कि हमने जिस किस्म का दबाव डालना चाहिए इस मौजू पे वो डाला है। हम कहते हैं कि बायोमेट्रिक सिस्टम करेंगे बॉर्डर्स पे, अफगान कहते हैं नहीं करेंगे और आप मान लेते हैं। क्यों? ठीक, आपको अपनी हिफाजत देखनी है। मैं आपसे फिर से दोहराता हूं कि अगर अफगानिस्तान में ये सूरत हाल रही कि तालिबान को किसी किस्म का हिस्सा हुकूमत में मिलेगा, अमरीकी करवाएं, कारजाई करवाए, जो भी करवाए, हमें ये हमारे लिए जरूरी इकदाम है कि वो इन्फ्लुएंस यहां न रहे। मुझे तशवीश आज की खबर से है कि मंगलबाग और जकाखेल जो उनको ठीक करने वाले थे, उनमें अब मीडिएशन अफगान तालिबान कर रहे हैं। ये हमारी हालत हो गई है। अगर ये हालत रहेगी तो फिर आप किसी से बातचीत करने के नहीं रहेंगे। देखिए, आपको ये जो जनरल साहब ने बात की कि ये रेपुटेशन की बात नहीं है, ये फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड सही है। एक मुझे बेग साहब, आपसे पहले मैं नजम साहब से भी ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे। आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान हैज टू डिसाइड अबाउट अफगानिस्तान, और पाकिस्तान का एक जाहिर है कि हम हमसाए हैं, हमने यहीं पे रहना है, बाकी साहब ने चले भी जाना है, आज नहीं तो 20 साल बाद जाएं, जब भी उनकी मर्जी होगी जाएंगे। क्या अमेरिकन जब क्राफ्ट करते हैं अपनी पॉलिसी या इत्तेहादी क्राफ्ट करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी, तो पाकिस्तान की कंसर्न या पाकिस्तान से मशावरत करते हैं वो? देखिए, मैं अगर चाहूं तो यहां पे आपको एक किताब लिख के दूं कि अमेरिकन पॉलिसी अफगानिस्तान में कितनी खामियां थी, इससे शुरू करते हुए कि उसामा बिन लादेन को आपने अफगानिस्तान आने क्यों दिया। सूडान से आप पे मुनसर था ना कि वो कहां जाए, सूडान पे आपने दबाव डाला था। उसामा बिन लादेन को आप वहां क्यों भेज रहे थे जहां पे उसका पहले असर था, उसकी शोहरत थी। अगर वो पहुंचा तो वो तो कदीर के पास पहुंचा था, जो कमांडर था जलालाबाद में, वो तो कदीर था। कदीर तो नॉर्दर्न अलायंस के साथ था, रबानी के साथ था। उस वक्त आप उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? आपने हिकमत यार, आपको ईरान ने कहा कि आप ले जाइए इसको 2001 के बाद, आपने क्यों नहीं लिया? अगर मैं खामियां तोरा बोरा में आपने क्यों उन पख्तूनों को लगाया, उन पख्तून लीडर्स को लगाया जिनका कोई कंट्रोल नहीं था? आपने क्यों वॉरलॉर्ड्स को जिंदा किया जबकि वो मर चुके थे, मरे नहीं थे लेकिन कम से कम डोर्मेंट हो गए थे तालिबान हुकूमत। तो वो खामियां तो छोड़िए, अब आपको सोचना ये है कि 2014 तक ये निकलेंगे, कुछ भी होगा ये निकलेंगे, नेटो फोर्सेस निकलेंगी, कोई बेस अमेरिकन रखेंगे, वो भी यकीनी है। लेकिन आपका क्या होना चाहिए? आपके पास, अब हमारे साथ सनतकार बैठे हैं, इनसे पूछिए, $5 अरब के करीब मेरे हिसाब से आपके यहां स्मगलिंग हो रही है। आपके यहां रोज 45,000 लोग क्रॉस करते हैं। आपके यहां 1.5 लाख आप कहते हैं कि 1,72,000 रेफ्यूजीज हैं। मैं कहता हूं ये गलत है। आपके पास कम से कम इतने ही नंबर है जो कि अनरजिस्टर्ड है, और उसके अलावा 1.5 मिलियन सॉरी 1.5 मिलियन है। 1.5 मिलियन से के करीब आपके अनरजिस्टर्ड है, और 1 मिलियन के करीब के पास आपके डॉक्यूमेंट्स है। आप जरा सोचिए, सिर्फ इक्तिसादी तौर पे सोचिए कि अफगानिस्तान की कीमत आप क्या अदा कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में अगर इस्तेकाम आए, किसी के कोई भी हुकूमत हो, और आप यहां से तुर्कमेनिस्तान की पाइपलाइन लगा लें, आप वहां तिजारत शुरू कर लें, तो आप जब कहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो इसी पे मुनहसर है कि अफगानिस्तान में इस्तेकाम आए। तो आपको फैसला करना है, आपको इस्तेकाम की ज्यादा जरूरत है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जरूरत नहीं है, आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। There is no second opinion. But there is no government in Afghanistan which can afford to antagonize you if you remain firm. अगर आप जैसे सॉवरेन कंट्रीज दूसरी सॉवरेन कंट्री के साथ डील करती, अभी आप क्या कर रहे हैं? ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट पे आपने कहा कि आप गारंटीज दीजिए, तो वो कहते नहीं देते, हम 65 की एग्रीमेंट पे चलेंगे, और हम चुपके से मान रहे हैं। क्यों? हम अपने आप से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करूंगा। इस वक्त हमें पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो लॉसेस अरबों में हो रहे हैं वो
ट्रांजिट ट्रेड की वजह से हो रहा है। हमारे हजारों कंटेनर्स जो हैं मतलब, और वो चीजें मंगाई जाती हैं जो वहां पे यूज नहीं हो रही हैं, और वो जनाब बगैर ड्यूटी के डिसअपियर्ड हो जाते हैं। जब से पाकिस्तान को जब से ट्रांजिट ट्रेड हमने किया उस वक्त से हो रहा था, काफी हो रहा है। जी हाँ। अब एक चीज मैं यहाँ पे और करना चाहूंगा, ये सोचा जा रहा था कि इस बार जब डेविड कैमरॉन पाकिस्तान विजिट करेंगे तो कम से कम थोड़ा सा एक मैसेज इंडिया को भी देंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बात की थी। वही, ये कोई आइंस्टाइन आप नहीं है, सबको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया जो है कितना इन्वॉल्व है। इंडिया जो है, हमारी हुकूमत भी कहती रही है, हमारे वजीर दाखिला भी कहते रहे हैं कि इंडिया जो है हथियार प्रोवाइड कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर आज सब बगावत के जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। ये बताइए कि ये बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये कह सकते थे इसको, इंडिया को भी इनको एक मैसेज दे सकते थे उनको कि जी आप भी इस चीज को, अगर आप हमें एक मैसेज दे रहे हैं हमारे दुश्मन की सरजमीन से, आप उनको भी एक मैसेज दें कि आप भी पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल नहीं करें और ये प्रमोट नहीं करें इन चीज को। मगर उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया। अब एक चीज और बतलाऊंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, आज उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो रिच क्लास है वो टैक्सेस पे नहीं कर रही है, और ही सेट के हमारे यहाँ जीडीपी और टैक्स का जो रेशियो है वो 36% है, जबकि पाकिस्तान में जीडीपी और टैक्स का जो है 9 to 10% है। एंड ही सेट कि जब आप हमसे मदद मांगते हैं तो हमारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की रिच क्लास तो वो देते नहीं कर रहे हैं और आप हमसे वो मांग रहे हैं, तो इसको आप इंक्रीज वीजा का जो इशू है, वीजा का जो क्वेश्चन, देखिए वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी। नहीं सर, उसके बारे में उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कहा ये पॉलिसी है, मगर उसकी बड़ी जरूरी है क्योंकि एक्सपोर्टर्स के लिए देखिए इस वक्त बाहर के जो बायर्स हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, हमें जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर यूरोप के अंदर या इंग्लैंड के अंदर नुमाइशें लगती हैं मगर स्टॉल हमारे खाली पड़े रहते हैं क्योंकि उनको वीजा नहीं दिए जाते। तो स्टूडेंट्स को भी हायर एजुकेशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज में वहां पे जा रहे हैं और हमारे बिजनेस तो 30,000 एवरी ईयर हम दे रहे हैं उनको, तो बहुत सख्ती हो गई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा सख्ती हो गई है। और उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तान सब स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हो जाएं, और वीजा जो है शायद इस वक्त पाकिस्तान में इशू भी नहीं हो रहा, जो वीजे हैं शायद इनके दुबई में, दुबई के अंदर हो रहा है। जी हाँ, वो सवाल उनसे किया था। ये जो ये बताया कि 45,000 लोग रोज क्रॉस करते हैं, उनके पास पता नहीं पासपोर्ट होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, कुछ होता है कि नहीं होता है। आप मुझको ये बताइए कि हम इंडिया का वीजा मांगते हैं तो वो एक शहर का देते हैं पुलिस रिपोर्टिंग का। कितनी मुश्किलों के साथ आप इमिग्रेशन कंट्रोल जाते हैं, कभी किसी की तलाशी होती है, कभी पैसे निकालते हैं, कभी कुछ। श्रीलंका, बांग्लादेश, जिसमें जाए छानबीन के बाद आपको बड़ी मुश्किल से वीजा मिलता है। किस किस्म का मुल्क है कि 45,000 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान स्मगल कर रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, गोला बारूद नारकोटिक्स ला रहे हैं, फिर आप कहते हैं मुल्क में अमन क्यों नहीं है, मुल्क में टेररिज्म क्यों हो रहा है, मुल्क में ये क्यों हो रहा है। मतलब हम तो यही कह रहे हैं कि बहुत से इश्यूज जो हैं ये गवर्नेंस के हैं, ये सही एक मजबूत पॉलिसी अडॉप्ट करने के हैं। जब तक हम नहीं करेंगे अपने बॉर्डर में अमन किस तरह लाएंगे हम। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, इश्तियाक बेग साहब, सनतकार, तजियाकार, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मानों का। जी नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी डेविड कैमरॉन के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से और पाकिस्तान और यूके के रिलेशंस है उनको किस तरह से बेहतर किया जाए। अहम बात यह है कि इस खित्ते में जब तक अमन नहीं होगा, अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। उस हवाले से जिस किस्म की पॉलिसी की या स्ट्रैटेजी की जरूरत है उसके ऊपर हमें डट कर बात करनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो काबरीन हैं, सियासी काबरीन और हमारे जो मुख्तलिफ फोर्सेस के जो रहनुमा है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बेहतर समझते हैं और बेहतर तरीके से उसको प्रोटेक्ट करते हैं और करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। लेकिन जहां पे उनसे खुल के बात करनी है और करनी चाहिए, यकीनी तौर पे पूरी कौम जो है वो ये तवक्को रखती है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।